So the first question is, should you book a cab in advance for an early morning international flight? Let's start with something that can literally make or break your trip. अगर आपकी flight early morning है, especially international, then last minute Ola या Uber पर depend करना honestly risky हो सकता है. My flight was on 26 January, which is a public holiday, and I had to leave my house around 5 a.m. Public holidays का सीन ये होता है कि road blockages होते हैं, ड्राइवर कम मिलते हैं और cancellation का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. That's why I booked my Ola cab one day in advance, and trust me, that one decision removed 90% of my stress. The driver reached almost 30 minutes early. He was already waiting for me from 4:30 a.m. So no panic, no checking apps again and again. Because it was early morning and Republic Day, roads were almost empty. I reached the airport in just 40 minutes and completely avoided the Gurgaon traffic. Now next question is, what actually happens once you reach the airport? So airport का process बहुत लोगों को intimidating लगता है, but honestly it's very simple if you know the flow. So I finally reached the airport, and let's start with the process. And it's my first time taking international flights. I'm not sure about the steps, but let's see. And I'm not attached mic right now, so yeah. ऑल्सो मेरी फ़्लाइट 10:25 की थी, जो कि पहले हो गई है. लोगों की फ़्लाइट डिले होती है, मेरी पहले हो जाती है. अब 9:45 की थी, जिसकी वजह से मुझे 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा. ऑल्सो मैं अपना नेक पिलो लाना भूल गई. As soon as you reach the airport, the first step is baggage drop. You drop your check-in luggage and then move towards immigration. मेरे केस में immigration surprisingly fast था, क्योंकि 26 जनवरी को काफ़ी कम लोग travel करते हैं. The queue was very short. This turned out to be an unexpected advantage of traveling on a public holiday. मुझे ये भी लगता है ये early morning flight थी, इसलिए मुझे ये advantage मिला, क्योंकि वापस आते वक्त immigration की line बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं शाम में travel कर रही थी. So I'm done with my immigration process. I've submitted my luggage and now only have my handbag, which is the check-in bag. Now next question is that Delhi airport per duty free shopping is actually worth it or not. So let me tell you honestly, at Delhi airport duty free you'll mostly find alcohol, perfumes, cosmetics, chocolates, watches and a few luxury items. Alcohol and perfumes usually give the best value because taxes are removed, so sometimes they are cheaper than Indian stores. Chocolates are also nice to pick if you want something for gifting. But one important thing you should know is that duty free does not always means cheap. So you'll find exclusive Chanel, Dior, Armani hair at the duty free place. Get a lot of chocolates, chocolate brands, and maybe cosmetics, liquor, skincare, perfumes. Many items like electronics, bags or makeup can be the same price or even more expensive than online deals in India. So always compare prices before buying. Also, don't think of duty free as a profit business, because buying items to resell is not really practical and there are legal limits. So basically, as an international traveler, you are allowed duty free goods only up to a certain value for personal use. My tip is simple: buy duty free for yourself, for gifting, or when you genuinely find a good deal. Don't buy just because it says duty free. Next question is, do Indians need a visa to travel to Thailand? So ये question almost हर Indian traveler के mind में होता है. The good news is that Indians do not need to apply for a visa to travel to Thailand. Visa is currently free for Indians, but एक very important step है जो आप miss नहीं कर सकते हैं. You have to fill the Thailand digital arrival form, also called the TDAC form. I'm quite tired. I'm all tired and I think I'll go to the washroom and then I'll eat something. ये फॉर्म सिर्फ ट्रैवल के 3 दिन पहले से ही फिल होता है, उससे पहले नहीं. सो यू गेट अ 3-day विंडो. द फॉर्म इज़ ईजी एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टेक अ प्रिंट आउट एंड कैरी इट टू द एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे केस में किसी ने नहीं पूछा, बट जनरली दे डू एंड इट इज़ मैंडेटरी. अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा, देयर इज़ अ चांस यू मे नॉट बी अलाउड टू एंटर द कंट्री, इसलिए इसको रिमाइंडर नोट्स में कहीं भी लिख लो. ऑल्सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ फेक वेबसाइट्स. आई सॉ साइट्स charging around 1000 baht for this form. This is not required. The official TDSE form is free. Always use the official government website for filling these kind of forms. फिर आता है बहुत important question, which is the best platform to book flight tickets.
फ़्लाइट बुकिंग में थोड़ा स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनली आई ऑलवेज़ प्रेफर स्काई स्कैनर। इट कंपेयर्स प्राइसेस अक्रॉस एयरलाइंस एंड मल्टीपल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, सो यू गेट द बेस्ट डील एट वन प्लेस। एंड एक छोटा सा टिप जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, ट्राई चेकिंग और बुकिंग फ़्लाइट्स अराउंड मिडनाइट या फिर 1 AM के बाद। सम पीपल बिलीव कि प्राइसेस ड्रॉप ड्यूरिंग दैट टाइम। आई एम नॉट 100% श्योर इफ़ दैट वर्क्स एवरी टाइम, बट मैं पर्सनली रात को ही चेक करती हूँ। एंड ऑलवेज ट्राई टू बुक योर फ्लाइट्स एटलीस्ट 15 days इन एडवांस। लास्ट मिनट बुकिंग में प्राइसेस शूट अप, बट अगर बहुत पहले बुक करूँ तो प्राइसेस कभी कभी हाई होते हैं। सो आई थिंक 2 to 3 weeks बिफोर ट्रैवलिंग यूजुअली वर्क्स बेस्ट। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं। तो हाउ शुड यू गेट अ सिम कार्ड इन थाईलैंड? इंटरनेट के बिना ट्रैवल इमेजिन करना मुश्किल होता है। सो फर्स्ट चेक इफ़ योर फ़ोन सपोर्ट्स ई सिम। iPhones already have eSIM and many Android phones support it too. मैंने अपना ई सिम थाईलैंड जाने से पहले अगोडा से बुक कर लिया था। देर आर मैनी प्लान्स अवेलेबल। आई चोज़ अ प्लान ऑफ अराउंड 900 रुपीज़ विच गेव मी अप्रॉक्सीमेटली 20 GB ऑफ डेटा फॉर 15 days। सो इस प्लान में कॉलिंग इंक्लूडेड नहीं था, बट ऑनेस्टली यू डोंट नीड इट। थाईलैंड में ऑलमोस्ट एवरी वन यूजेज व्हाट्सएप, सो व्हाट्सएप कॉल्स works perfectly fine. Also, Wi-Fi is available almost everywhere: cafes, hotels, restaurants, airports, and mobile data is mostly needed when you are outside. सबसे मेन बात, how does eSIM activation actually works? ये प्रोसेस सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इट्स एक्चुअली वेरी ईजी। आप इंडिया में ही इनिशियल सेटअप कर सकते हो। आफ्टर बुकिंग द eSIM, you get step by step instructions. Just follow them and keep the eSIM inactive. Once you land at the Phuket airport, connect to airport Wi-Fi and switch your network from physical SIM to eSIM. Within a few minutes, it gets activated automatically. And एक important tip, एयरपोर्ट से फिजिकल सिम मत लेना। एयरपोर्ट सिम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके फ़ोन में ई सिम ऑप्शन नहीं है तो गो टू 7-Eleven स्टोर instead you will get much cheaper physical SIM options there. Next question is how should you book your hotel in Thailand? होटल बुकिंग हमेशा थाईलैंड पहुंचने से पहले कर लो। फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। बीचेस प्रायोरिटी है तो बीच के पास रहो। सिटी एक्सप्लोर करना है तो सिटी एरिया में रहो। अदरवाइज ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। फॉर बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, मेक माई ट्रिप एंड अगोडा बोथ आर दी सेफेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। एक गोल्डन रूल, ऑलवेज चेक गूगल रेटिंग्स बिफोर बुकिंग। डोंट रिलाई ऑन दी ऐप photos. I stayed in a 4-star hotel and it was extremely clean, comfortable and exceeded my expectations. I'll show you the full tour in the next episode. ओके अगर आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगी। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज यू नो द ड्रिल। मैं बहुत सारे एपिसोड्स लाऊंगी। ये एपिसोड 1 था विच वॉज फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू फुकेट एयरपोर्ट। एंड अभी आपको जो भी और क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आगे आंसर करूँगी। ये वीडियो का आधा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बची है जो बहुत ज़रूरी है आपकी जाने से पहले। सो विल देयर बी अ लैंग्वेज प्रॉब्लम इन थाईलैंड? ऑनेस्टली नो, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग इशू इन थाईलैंड, स्पेशली इन टूरिस्ट एरियाज लाइक फुकेट, बैंकॉक, कराबी। बेसिक इंग्लिश ऑलमोस्ट सबको समझ आ जाती है एंड इशारे से समझ बिल्कुल आ जाती है। एंड जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आए, लाइक अगर फ्लुएंट इंग्लिश आपको नहीं मिल रही है सामने वाले में, देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू हेल्प यू। हैंड जेस्चर्स, गूगल मैप्स एंड गूगल ट्रांसलेट, वो ये सब यूज़ करते हैं एंड दे नो हाउ टू यूज़ इट विद टूरिस्ट। आई नेवर फेल्ट स्टक और हेल्पलेस बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड पीपल आर वेरी पेशेंट विद टूरिस्ट। इवन वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो गूगल ट्रांसलेटर रेडी रखते हैं एंड दे नो वॉट यू आर सेइंग। So how friendly are Thai people towards Indians? Thai people are extremely polite, respectful and warm. मुझे पर्सनली कभी भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ। शॉपकीपर्स, कैब ड्राइवर्स, होटल स्टाफ एंड इवन रैंडम पीपल ऑन द स्ट्रीट आर वेरी हेल्पफुल. They smile a lot and they don't judge you. I never felt like an outsider. And as an Indian traveler, especially as a woman, their friendliness makes a huge difference in how safe and relaxed you feel. एंड वो आपसे बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं, बहस नहीं करते। एंड जो कि मैं दिल्ली में रही हूँ एंड आई फेस इट
ऑन डेली बेसिस, जो कैब्स वालों की बदतमीज़ी एंड तेज़ बात करना एंड बहस करना एंड ड्रॉप लोकेशन पर नहीं उतारना। थाईलैंड में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैंने ड्रॉप लोकेशन थोड़ी अलग डाल दी मेरे होटल से, एंड वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का फ़र्क था थोड़ा सा रास्ते में। तो जब भी आप कैब में बैठते हो, ग्रैब या बोल्ट में, दे विल आस्क यू आपको कहाँ जाना है, एंड देन दे क्रॉस चेक। एंड उसने बोला ओ आपने लोकेशन अलग डाली है, एंड ही जस्ट ड्रॉप्ड मी इन माई लोकेशन। मुझे लगा वो मुझे स्कैम करने का ट्राई करेगा ज़्यादा पैसे मांग के, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उसने वो लोकेशन जाना एंड उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एंड वो बहुत ही अच्छे से आपको, जब आप बैठते हो तो आपको ग्रीट करते हैं, जब आप उतरते हो तब आपको ग्रीट करते हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली, एंड वो आपको वहाँ का बताने का ट्राई करते हैं कि यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, आपने कितना एक्सप्लोर किया, ये भी जानने का ट्राई करते हैं। जो कि मुझे शुरू में डर लग रहा था, बिकॉज एज एन इंडियन हम डरते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राइम है, बट वहाँ पे लोग जेन्युइनली केयर करते हैं एंड पूछते हैं, बताते हैं। एंड मुझे लगा ये क्या पता सिर्फ टूरिस्ट के साथ फ्रेंडली होते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें इनसे कमाना है, बट नहीं, ये आपस में भी उतने ही पोलाइट हैं। आई चेक्ड, रोड से क्रॉस कर रहे हैं, दे गिव, मतलब कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको जाने दो, वो वेट करेंगे। एंड अगर कोई बगल से थोड़ा सा टच भी हो गया तो दे विल से यू सॉरी, और या प्लीज़ गो, यू गो अहेड। एंड अगर आप वीडियो या फ़ोटो ले रहे हो, जो कि मैं अक्सर ले रही थी ट्राईपॉड पे, एंड अगर वो वीडियो या फ़ोटो के अंदर आ गए गलती से, दे से सॉरी, एंड वो ट्राई करते हैं कि वो आए ना फ्रेम में, वो साइड से निकल जाए, एंड दे डोंट इवन वॉच you, they don't judge you. Let's move on to the next question. Which seat should you book when you are traveling to Phuket? So ये एक छोटा सा डिसीजन है बट एक्सपीरियंस completely चेंज कर देता है. Always book a window seat on the left side of the flight when you are traveling to Phuket. लैंडिंग के टाइम लेफ्ट साइड जो व्यू मिलता है, इट्स अनरियल. एंडलेस ओशंस, शिप्स, ओ माई गॉड. यू विल सी ऑल शेड्स ऑफ ब्लू हेयर, क्योंकि ये अंडमान सी है. ओशन जो है लैंडिंग के टाइम बहुत पास आ जाता है, सो इट फील्स रियली वेरी सिनेमैटिक. अगर आप राइट साइड बुक करते हो तो आपको आइलैंड व्यू ज़्यादा मिलता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, बट आई पर्सनली प्रेफर दी वाटर एंड ओशन व्यू विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. और अगर आपकी मॉर्निंग फ्लाइट है तो द क्लाउड फॉर्मेशंस आर नेक्स्ट लेवल, सो आई वॉज लिटरली स्टन. लैंड करते टाइम कीप योर फोन्स कैमराज रेडी, क्योंकि बहुत ही स्टनिंग व्यू आएगा जो आप रिकॉर्ड करना मत भूलना. एंड या थोड़े पैसे लगा देना बट विंडो सीट ही लेना गाइज. लुक एट दिस. नाउ व्हाट इज द AQI ऑफ फुकेट कंपेयर टू दिल्ली? तो फुकेट का AQI इज यूजुअली इन द गुड टू मॉडरेट रेंज, अराउंड 30 to 60, which means clean air and easy breathing. And Delhi ka AQI is often very poor to severe, like 200 to 400 plus, especially in winters, which can cause breathing discomfort. Thoda off topic, but how is the presence of women working as aircraft mechanics and ground staff at airports in Thailand compared to India? So basically in Thailand it's very common to see women working directly on the tarmac as aircraft mechanics, ground engineers and technical staff. ये वहाँ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई सरप्राइज नहीं होता. इंडिया में ये लार्जली मेल डोमिनेटेड फील्ड है, एंड द डिफरेंस इज नॉट अबाउट कैपेबिलिटी और स्किल एट ऑल. स्किल्स दोनों जगह सेम होते हैं, बट थाईलैंड्स वर्क कल्चर गिव्स वुमेन मोर विजिबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन फिजिकली डिमांडिंग आउटडोर एंड नाइट शिफ्ट रोल्स. एंड एज अ वुमेन ट्रैवलर, सीइंग दिस instantly makes you feel safer and more confident because it reflects a secure, inclusive and respectful work environment at public places like airports. Now, what is the best and safest way to travel around Thailand without spending too much? जैसे इंडिया में ओला और उबर चलता है, वैसे ही ग्रैब एंड बोल्ट चलता है थाईलैंड में. आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेना थाईलैंड जाने से पहले. दे आर रिलायबल, दे आर सेफ, बट येस दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव if you use them frequently. Thailand has an official government transport website where you can check and book buses. Their public transport system is very strong, very organized and very tourist friendly. Government buses are clean, air conditioned and easy to use. Another smart way to save money is booking your experience in advance through Klook. Instead of booking tours from random agents in Thailand, book them online beforehand. It's usually cheaper, transparent and more reliable. Next question is, how do you reach your hotel from Phuket airport without spending too much? ये पार्ट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करते हैं. While booking your hotel, try staying either near Phuket Old Town or Patong Beach. These are major areas from where most tourist spots are easily accessible.
एयरपोर्ट से होटल जाने का बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉट ग्रैब और बोल्ट। एंड यस, मैं स्मार्ट बस की बात कर रही हूँ। थाईलैंड की गवर्नमेंट बसेस ऑनेस्टली काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। एंड एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको साइन मिलेगा जहाँ लिखा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ आपको स्मार्ट बसेस मिल जाती हैं, उसके लिए कोई बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है पहले से। वहाँ आपको ऑन द स्पॉट बस मिल जाएगा एंड द स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली। वो आपका सामान आपको ड्रॉप करेगा बस के अंदर एंड आपको सीट मिलेगी एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, लाइक 100 बाट में आपको वो पटोंग बीच उतारेगा। अब मेरे केस में होटल सिर्फ 200 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पर था, प्लस बस रूट फुकेट ओल्ड टाउन से पटोंग बीच तक जाता है, सो यू गेट अ फुल सिटी व्यू। बस में काफ़ी यूरोपियंस थे विच शोज़ हाउ रिलायबल दिस ऑप्शन इज़। हर जगह टाइम लेकर चलना, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल जाने में मुझे टाइम लगा था। इट वाज नॉट वेरी क्लोज, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एयरपोर्ट का लोकेशन अलग है एंड जो बीच एरिया है या ओल्ड सिटी एरिया है उसका लोकेशन थोड़ा अलग है। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। तो खाने पीने का सामान रख लेना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर दिए हैं जो आपको थाईलैंड जाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखकर ये इन्फॉर्मेशन निकाला एंड फिर वहाँ जाके उसे एक्सपीरियंस किया, उसको अपने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया, तो मैं आपको बता पा रही हूँ। एंड यू नीड अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन एंड वो सब मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, क्योंकि थाईलैंड सीरीज़ बहुत बड़ा होने वाला है। आज मैंने जो क्वेश्चंस आंसर किए ये तो बिल्कुल थाईलैंड पहुंचने के पहले वाले क्वेश्चंस हैं। अभी थाईलैंड पहुंचने के बाद हज़ारों क्वेश्चंस बचते हैं जिसका आंसर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई विल शो यू इन नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो मैं फुकेट पहुँच चुकी हूँ, ये है मेरा डे 1 और यहाँ पे शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो सनसेट हो रहा था। एंड हाँ, यहाँ पे लोगों के लिए लिटरली गाड़ी रुक जाती है सो दैट पीपल कुड क्रॉस रोड्स। मुझे बहुत शॉकिंग लगा एज एन इंडियन। यहाँ पे लोगों का सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है अनलाइक इंडियंस, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ देख के। एंड वहाँ पे आपको हर जगह एटीएम मशीन्स दिख जाएंगे एंड खाने के ऑप्शंस तो अगर आप वेजिटेरियन हो आपको भर भर के मिलेंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। वेजिटेरियन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है थाईलैंड में। थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना होगा आपको। एंड ये रहा मेरा होटल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।